Good morning, student. We are going to study our unit 2 of environmental studies BEVAE 181 और हमारा उसमें जो सेकंड यूनिट है यूनिट 2 जो है उसका यूनिट का नाम है इकोसिस्टम। उसको रीड करेंगे। पहला टॉपिक है उस यूनिट 2 का व्हाट इज एन इकोसिस्टम। लेट्स रीड पूजा जी, देन वी विल। यस। What is an ecosystem? You and I, as you know, live in a defined area of the earth where plants and animals, including ourselves, develop relationships with each other for life, food, water, shelter, and mates. These discrete units have both living and non-living environment components which are independent and united in terms of their structure, components and functioning. Such a discrete unit is called an ecosystem. जी, तो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे पूजा जी। यस सर। जी बताएं क्या इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ के आसपास जो रहते हैं एरिया में जो रहते हैं प्लांट्स एनिमल्स और हम सब जिसमें इंक्लूड है वो लाइफ फूड शेल्टर और ये सब लेते हैं। These discrete unit has both living and non-living. ये दोनों जो है नॉन लिविंग मतलब अजीविक और जीविक the environment components which are independent and ये पूरे से तरह से डिपेंडेंट है environment पे and in related in term of the structure components and function. इनका जो structure है इनके जो components है और function है वो पूरी तरह से related है ecosystem environment पे। तो इसी यूनिट को कहते हैं इकोसिस्टम। जी बहुत बढ़िया। अभी मैं यहाँ से वेलकम करना चाहता हूँ प्रियांशी जी, इफ शी कैन आल्सो एक्सप्लेन दिस। Yes, sir. Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। You and I, as you know, live in a defined area of the earth. जैसा कि तुम और हम जानते हैं कि हम एक अर्थ के डिफाइंड एरिया में रहते हैं, किसी एरिया जो डिफाइंड हमें दिया गया है उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग आवरसेल्फ, जहाँ पर प्लांट्स भी रहते हैं एनिमल्स भी रहते हैं और हमें इंक्लूड करके हम भी रहते हैं, डेवलप रिलेशनशिप विद ईच अदर फॉर लाइफ फूड शेल्टर एंड मेट्स। हम लोगों ने रिलेशनशिप क्यों डेवलप किया एक दूसरे के बीच में? लाइफ के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए और मेट्स के लिए। दिस डिस्क्रीट यूनिट हैज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स। जो ये यूनिट है इसके अंदर लिविंग इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स भी और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स भी है which are interdependent and interrelated in terms of their structure। जो कि interdependent है, अपने ऊपर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर और उनसे इंटररिलेट करते हैं। किस चक्कर में? उनके स्ट्रक्चर की वजह से वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। कंपोनेंट्स एंड फंक्शनिंग, और अपने कंपोनेंट्स की वजह से भी और फंक्शनिंग की वजह से भी। Such a discrete unit is called an ecosystem। जो ये यूनिट है इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जी अभी नेक्स्ट के लिए पलक जी आप रीड करेंगे। जी। Definition of ecosystem. An ecosystem is defined as any unit, a biosystem that includes all the organisms that function together, the biotic community in a given area interacting with the physical environment. A biotic component so that the flow of energy clearly leads to defined biotic structures and cycling of materials between living and non-living parts. The ecosystem is thus a dynamic system which involves the interactions between living and non-living components of an ecosystem and includes the input, transfer, storage and output of energy as well as cycling of essential materials through the ecosystem. All the processes that occur in the ecosystem are energy dependent. Figure 2.1 illustrates this beautifully. Ecosystems differ greatly in composition, in the number and kinds of species, in the kinds and relative proportions of non-biological biological constituents
and in the degree of variation in time and space. The study of an ecosystem is based on its structure and function. जी प्रियांशु जी, Yes, sir. definition of ecosystem. Yes, sir. An ecosystem is defined as any unit that includes all the organisms that function together. जो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्या है? किसी भी यूनिट में जो इंक्लूड करता है ऑर्गेनिज्म, वो होता है इकोसिस्टम, जो अपने अंदर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करके रखता है, दैट फंक्शन टुगेदर, और वो फंक्शन भी एक साथ करते हैं, एक साथ मिलकर किसी एक गिवन एरिया में, इन अ गिवन एरिया, इंटरैक्टिंग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट, और वो फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, सो दैट द फ्लो ऑफ एनर्जी क्लियरली लीड्स टू डिफाइन बायोटिक स्ट्रक्चर्स एंड साइक्लिंग ऑफ, जो कि फ्लो है एनर्जी का उनके बायोटिक स्ट्रक्चर्स में, और उनके जो मटेरियल्स है उसमें साइकिल कर सके बिटवीन नॉन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स, जो उनकी एनर्जी है वो हर एक उनके स्ट्रक्चर में जा सके, उनका जो लिविंग पार्ट भी है और जो उनका नॉन लिविंग पार्ट भी है. The ecosystem is thus a dynamic system which involves the interaction between living and non-living component. जो ecosystem है वो एक dynamic system है जो कि involve करता है अपने अंदर interaction किसके बीच में, living and non-living components के बीच में of an ecosystem, ecosystem के, and includes the input, ट्रांसफर, स्टोरेज एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी, जो अपने अंदर इंक्लूड करके रखता है इनपुट, आना, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, स्टोरेज किसी चीज को संभाल के रखना, एंड आउटपुट और देना एनर्जी को, एज वेल एज साइक्लिंग ऑफ एसेंशियल मटेरियल्स थ्रू द इकोसिस्टम, और जो उनके अंदर एसेंशियल मटेरियल्स भी है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है, उसको इकोसिस्टम के थ्रू साइक्लिंग करना. All the processes that occur in the ecosystem are energy dependent. जो भी इकोसिस्टम में प्रोसेसेस होते हैं वो सारे एनर्जी के ऊपर डिपेंड होते हैं. अगर एनर्जी है तो वो होंगे, एनर्जी नहीं है तो वो नहीं होंगे. जो हमारा फिगर 2.1 है वो ये इलस्ट्रेट करता है, इलस्ट्रेटेड दिस ब्यूटीफुली. जो ये हमारी पूरी प्रोसेस है, ये 2.1 जो फिगर है वो इलस्ट्रेट करता है अच्छे से. इकोसिस्टम डिफर ग्रेटली इन कंपोजिशन. जो इकोसिस्टम है वो डिफर करता है कंपोजिशन में, इन द नंबर एंड काइंड्स ऑफ स्पीशीज. किससे डिफर करता है? नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ स्पीशीज, जो स्पीशीज है उनसे. इन द काइंड्स एंड रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ नॉन बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूट्स, और किससे करता है? जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है नॉन बायोलॉजिकल कंस्टिट्यूट्स के, उससे भी वो डिफर करता है. And in the degree of variation in time and space, or degree of variation in time space, जो time and space में variations आ जाते हैं उसमें भी वो differ करता है. The study of an ecosystem is based on its structure and function. जो हम ecosystem की study कर रहे हैं वो किसके ऊपर base होती है? उसके structure के ऊपर और उसके function के ऊपर. जो उसका structure है और जो वो function करता है. जी नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए कौन आएंगे? पिंकी शर्मा जी. जी आप रीड करेंगे पूजा दास जी.
कशिश जी आते हैं, ठीक है, कशिश जी आप आएंगे जी। इकोसिस्टम फीचर्स, इसको रीड करना है। Ecosystem features. Ecosystem have both structure and functional features, some of which you have studied in Unit 1 and other which you will study in this unit. You will learn about some other aspects in the forthcoming unit. The ecosystem features are as follows. Structural features. The structural features aspects of the ecosystem refer to the elements that make up an ecosystem, the individual and communities of parts of plants and animals and non-living factors present in the ecosystem. The structural components include a abiotic component, non-living component. Inorganic compounds, carbon, nitrogen, carbon dioxide, water. Organic compounds, protein, carbohydrate, lipids, which link the abiotic to biotic component. Biotic component, living component. Producer, plant, consumer, primary, secondary, or tertiary. Decomposer, saprotroph. Functional feature. Functional features, functional aspects refer to all the processes and interactions performed by the organism in an ecosystem and include energy cycle, food chain, diversity interlinks between organisms, nutrient cycle, biochemical cycle, succession. जी प्रियांशी जी आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे जी। इकोसिस्टम की फीचर्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, उसके कंपोनेंट बताए गए। यस प्रियांशी जी। Yes, sir. जी Ecosystem features. Ecosystems have both structural and functional features, some of which you have studied in Unit 1. Ecosystem के दोनों features होते हैं, structural भी होते हैं and functional features भी होते हैं, जो कि हम कुछ पढ़ चुके हैं अपनी Unit 1 में, and others which you will study in this unit. और जो और आगे वाले features है वो हम इस unit में पढ़ेंगे. You will learn about some other aspects in the forthcoming units. और हम कुछ other जो हमारे इसके कुछ और aspects है वो हमें आगे वाली unit में जब आएंगे तो तब पढ़ेंगे. The ecosystem features are as follows. Structural features. First होता है structural feature. The structural aspect of the ecosystem refers to all the elements that make up an ecosystem. जो structural feature है, जो structural aspect है ecosystem का, वो क्या refer करता है? उसकी definition ये है कि वो refer to all the element that make, वो सारे element को refer करता है जो कि ecosystem को बनाते हैं. जिसने इकोसिस्टम को बनाया है वो स्ट्रक्चरल फीचर है. द इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि जिसमें इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज ऑफ प्लांट की कम्युनिटीज एंड एनिमल्स की कम्युनिटीज, नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम, इन सब ने मिलकर इकोसिस्टम को बनाया है. द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इंक्लूड, और जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है उसके अंदर ये सब चीजें इंक्लूड होती है. फर्स्ट है एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स को नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं. फर्स्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सारी गैसेस हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ गया प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स विच लिंक द एबायोटिक टू बायोटिक. जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बायोटिक कंपोनेंट से लिंक करवाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट को. थर्ड आ गया क्लाइमेटिक रिजाइम्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट एंड टोपोग्राफी, हमारे क्लाइमेट्स आ गए. ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब सेकंड है बायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स. फर्स्ट आता है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हमारे प्लांट्स, जो हमें सब कुछ प्रोड्यूस करवाते हैं. सेकेंड हो गए कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. कंज्यूमर्स हम हो गए जो उसको कंज्यूम करते हैं, वो भी 3 स्टेज में, प्राइमरी में, सेकेंडरी और टर्शरी में. थर्ड आ गया हमारा डीकम्पोजर.
सेप्रोट्रोप्स, डिकम्पोजर्स, जब हम अपनी चीजें को डिकम्पोज करते हैं तो उसको बोलते सेप्रोट्रोप। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल फीचर के अंदर जो दो चीजें आ गई, ए बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। Functional features. Functional aspects refer to all the process and interactions performed by the organism. जो हमारा functional feature होता है वो सारे प्रोसेस को और जो हमारी इंटरेक्शन हुई होती है और बाय द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म ने इंटरेक्शन की होती है और प्रोसेस किया होता है इकोसिस्टम में, उसे हम फंक्शनल फीचर कहते हैं। और ये अपने अंदर इंक्लूड करता है एनर्जी साइकिल्स, जो वो एनर्जी एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। फूड चेन्स, जो उनकी फूड चेन्स होती हैं। डाइवर्सिटी, इंटरलिंक्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जो डाइवर्सिटी होती है वो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरलिंक होती है। न्यूट्रिएंट साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, न्यूट्रिएंट साइकिल, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी साइकिल बनाते हैं और एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फिफ्थ आता है सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब जी, मतलब आगे जनरेशन को आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाना, ठीक है। तो ये फंक्शनल हो गए, एनर्जी साइकिल हो गया, फूड चेन हो गया, ठीक है। और एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन साइकिल हो गए। ओके, अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? साइज ऑफ इकोसिस्टम। अभी कशिश जी ने पढ़ा था लास्ट, भारती जी पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। size of an ecosystem. Ecosystem may vary in size from the smallest puddle of a water of traditional habitats or of a landscape of a large forest, a biome, or even an entire global biosphere and ecosphere. Figure 2.2. अच्छा, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। इसमें हमें साइज ऑफ इकोसिस्टम के साइज के बारे में बात की गई है। आप बता सकते हैं इसको, भारती जी? जी सर, जो हमारा इकोसिस्टम है उसके जो जल के जो छोटे से भाग है ना, जो थलीय प्रवास है, जिसमें भूदृश्य है, यानी कि जो हमारा रहने का स्थान है, विशाल जो हमारे बड़े जंगल हैं, सर ये बायोम क्या होता है? ट्रेडिशनल क्या होता है सर ये? टेरेस्ट्रियल। हाँ सर। उस पे टेरेस्ट्रियल होता है जो भूमि पर रहने वाले जीव जंतु। अच्छा, और यहाँ तक कि इसका समग्र जो भूमंडल है, जीव मंडल है, उसको पारिस्थितिक तंत्र तक विविध हो सकता है वो। जी जी, ठीक है, थैंक यू। अभी हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं प्रियांशी जी को बोलूंगा कि वो थोड़ा तीनों को एक्सप्लेन करे कि बायोस्फीयर क्या होता है और बायोम क्या होता है, इकोसिस्टम, कम्युनिटी और पॉपुलेशन, फिर इंडिविजुअल। तो इन्होंने देखो स्पेस दिखाया हुआ है बहुत अच्छे से कि एक इंडिविजुअल ये गोला करके दिखाया, एक इंडिविजुअल है ये। फिर थोड़ा सा और पॉपुलेशन की इन्हीं के कैटेगरी में 2-3 लोग और आ गए तो फिर ये पॉपुलेशन बन गया। फिर सर जब पॉपुलेशन जब ग्रुप्स में आ गए तो वो कम्युनिटी बन जाती है, और उसके बाद फिर इकोसिस्टम आ जाता है। फिर उसके बाद बायोमी आती है जहाँ पर जिस जगह पर हम रहते हैं, और इकोसिस्टम में आ जाता है जब नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं। बायोमी में जब हम लैंड्स पे रहते हैं, और बायोस्फीयर पूरी तरह उसको बोलते हैं अर्थ को। मीन जहाँ पे हम पूरे एनवायरनमेंट, लैंड और हमारा जो है वाटर एयर जो है ना, हर चीज जब इंटरेक्ट हो रहा है तो पूरा बायोस्फीयर में आ गया, इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर। लार्जेस्ट इकोसिस्टम हमारा जो है उसे बायोस्फीयर जो है उसको हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे 3 चीजें आएंगी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर। जी हाँ, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देखिए, लिथोस्फीयर भूमि से संबंधित है, एटमॉस्फेयर ये अभी इसको कौन रीड करेगा? भारती जी आप रीड करेंगे? जी सर। जी जी, यहाँ से रीड ऊपर पढ़ लिया ना ये वाला आपने? हाँ सर। जी अच्छा, जो आपने जी एक सेकेंड,
अभी जो भारती जी ने ये पढ़ा था साइज ऑफ इकोसिस्टम, उसमें आप देख सकते हैं साइज ऑफ इकोसिस्टम इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, बायोस्फीयर, बायोम, लैंडस्केप, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें। जी 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 भारती जी। Largest ecosystem biosphere. Before we explain the functioning of compounds of the ecosystem, let us first discuss the largest ecosystem, namely the biosphere. Biosphere, also called exosphere, is the part of the earth, water and atmosphere in which many smaller ecosystems exist and operate. The three main subdivisions of the biosphere are lithosphere, hydrosphere, atmosphere, or the gases envelope of the earth, which extends up to height of by 22.5 kilometer. Figure 2.3 show the enclave claim of biosphere in relation of hydrosphere, atmosphere and lithosphere. The area of contact and interaction between three components is really important for life, as is there that the entire of the confident and the basic processors of life, like photosynthesis and respired ocean. जी प्रियांशी जी इनको एक्सप्लेन करेंगे लार्जेस्ट हमारा इकोसिस्टम जो है उसको। Largest ecosystem biosphere. Before we explain the functioning of the components of the ecosystem, components of ecosystem की functioning को explain करने से पहले, let us first discuss the largest ecosystem, namely the biosphere. उसकी जो हमारे functioning है और components of ecosystem को उसको explain करने से पहले हम largest ecosystem के बारे में discuss करते हैं, जिसको हम the biosphere भी बोलते हैं। बायोस्फीयर ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर। जो बायोस्फीयर है हम उसको इकोस्फीयर भी बोलते हैं। is that part of the earth, water and atmosphere in which many smaller ecosystems exist and operate. ये वो पार्ट है अर्थ का जिसमें वाटर एंड एटमॉस्फेयर इन विच मैनी स्मॉलर, जिसमें छोटे छोटे इकोसिस्टम्स भी एग्जिट करते हैं और ऑपरेट करते हैं। The three main subdivision of the biosphere are, जो three उसके डिवीजन है वो है लिथोस्फेयर लैंड, hydrosphere water, atmosphere air, or the gaseous envelope of the earth which extends up to a height of 22.5 किलोमीटर। और जो उसकी gaseous envelope है, जो गैस है अर्थ की, वो एक्सटेंड करती है 22.5 किलोमीटर की हाइट पर। Figure 2.3 shows the idealized scheme of biosphere in relation to a hydrosphere. जो हमारा figure 2.3 है वो हमें ये शो करता है, स्कीम शो करता है बायोस्फीयर की हाइड्रोस्फीयर की रिलेशन उन मतलब एक दूसरे से कैसी है। एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, और एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर से कैसी है। द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन दीज थ्री कंपोनेंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। जो हमारा एरिया है ये कांटेक्ट करने का और इंटरेक्शन करने का, जो इन तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इन कंपोनेंट के बीच, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, एज इट इज हियर दैट द एंटायर लाइफ इज कन्फाइंड एंड द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्योंकि जो ये हमारा प्रोसेस होता है, जो इनके बीच में तीनों इंटरेक्शन होता है, ये हमारी पूरी एंटायर लाइफ के लिए एक बेसिक प्रोसेस है हमारी लाइफ का। जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन होता है, वैसे ही ये जब तीनों इंटरेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि लिथोस्फेयर से हम लैंड में रहते हैं, हाइड्रोस्फेयर हमें वाटर मिलता है और एटमॉस्फेयर से हमें एयर मिलती है। Priyanshi, can you read this also? Yes, sir. Biosphere is that part of the earth where life can exist. It is a narrow layer around the surface of the earth. If you visualize the earth to be the size of an apple, the biosphere would be as thick as its skin. So biosphere वो पार्ट है हमारी अर्थ का जहां पर हमारी लाइफ एग्जिट करती है, मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं। It is a narrow layer around the surface of the earth. जो अर्थ है उसके आसपास ये एक नैरो पतली सी लेयर है इसकी,
बायोस्फीयर की। इफ यू विजुअलाइज द अर्थ, अगर हम अपनी अर्थ को विजुअलाइज करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं वो कैसी होगी, टू बी द साइज ऑफ एन एप्पल, अगर हम उसे एप्पल की साइज का सोचते हैं, द बायोस्फीयर वुड बी एज थिक एज इट्स स्किन, जो हमने बताया कि वो लेयर है हमारे अर्थ के अराउंड आसपास, तो अगर हम उसकी साइज सोचते हैं कि वो एप्पल की साइज की है, तो जो उसकी लेयर होगी, जो उसकी स्किन है एप्पल की, उससे थोड़ी सी मोटी होती है बायोस्फीयर की लेयर। जी यहाँ से रीड करने के लिए कौन आएंगे? हैंड रेज कर सकते हैं आप। यस आशीष जी। जी हम बायोस्फीयर पढ़ रहे हैं, ऐसे रीड करना है आपको। The biosphere extends from the floor of the ocean some 11,000 meters below the surface of the earth to the top of the highest mountains, or about 9,000 meters above the mean sea level. Its most densely populated region is just meters uh, is just above and below the sea level. Life in the biosphere is abundant between 200 meters, 660 feet below the surface of the ocean and about 6,000 meters, 20,000 feet above sea level. Living organisms are not uniformly distributed throughout the biosphere. Only a few organisms, like in the polar region, while the tropical rainforest possesses an exceedingly rich diversity of plant and animals, the nutrients necessary for living organisms come from air, water, and soil and not from outside. The same nutrients that are present in the biosphere are recycled over and over again for life to continue. The energy required for the life within the biosphere comes from the sun, without which the biosphere will collapse. यस प्रियांशी जी। Yes, sir. जी The biosphere extends from the floor of the ocean some 11,000 meters below. जो हमारी बायोस्फीयर है वो हमारी एक्सटेंड हुई हुई है ओशियन का जो फ्लोर है 11,000 meters below, ओशियन से 11,000 मीटर नीचे, the surface of the earth to the top of the highest mountain, अर्थ की सरफेस से लेके ऊपर हाईएस्ट माउंटेन के टॉप तक, और अबाउट 9,000 meters above the mean sea level, और जो मीन सी लेवल है उसके 9,000 meters above तक फैला हुआ है. Its most densely populated region is just above and below the sea level. जिसका बहुत ज्यादा populated जो जगह है वो है above and below the sea जो level है हमारा उसके ऊपर है और उसके नीचे, उन दोनों चीज के बीच में है. Life in the biosphere is abundant between 200 meters below the surface of the ocean. जो हमारी बायोस्फीयर की लाइफ है ये abundant है. कहाँ से कहाँ तक? 200 meters below the surface of the ocean. surface of the ocean मतलब ओशियन का जो सरफेस है उसके नीचे 200 मीटर नीचे तक, and about 6,000 meters above sea level, और 6,000 meters जो above sea level है वहां तक हमारी जो बायोस्फीयर है वो एक्सटेंड है, और वहां तक हमारी जो लाइफ है वो abundant है. Living organisms are not uniformly distributed throughout the biosphere. जो हमारे living organisms है अच्छा तो इन्होंने जैसे बताया कितना जो हमारा माउंटेन है, ठीक है, Yes, ये sir. सी लेवल, ये देखिए ये सी इसको बोलते हैं हम सी मीन सी लेवल जिसको बोलते हैं ना, जैसे आपने मीन मोड मीडियन पढ़ा हुआ था, एवरेज सी लेवल जिसको हम बोलते हैं, वो अगर मान लो ये है तो यहाँ से इन्होंने ऊपर बात करी है कितना 9,000. 9,000,
और इसी से नीचे, अब इसके नीचे इसके देखिए, इसमें माउंटेन भी आ सकते हैं, ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ों के पेड़ भी आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े, और बहुत पक्षी ऊपर, बहुत ऊपर तक घूमते हैं, है ना, घूमने जाते हैं ना ऊपर। और इससे नीचे, ठीक है, समुद्र के नीचे तक, तो यहाँ तक हमारा बायोस्फीयर जो है एक्सटेंड होता है। तो जो सी लेवल था वहां पर हमारा जो बायोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम, 11,000। हाँ, 11,000 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे, टू द टॉप ऑफ माउंटेन, यानी अर्थ से नीचे जो माउंटेन या उसके नीचे, और फिर अबाउट 9,000 मीटर अबव द मीन सी लेवल, यानी कि 9,000। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? अबाउट 8,000 है ना। यस सर। तो 8,000 है, तो इसको माउंट एवरेस्ट को भी कवर कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो जो टॉप हाईएस्ट है, वो जो हमारा वो है, उसको भी उसमें कवर कर लिया। तो इस तरीके से है जी। आगे पढ़े। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको यूनिफॉर्मली मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है बायोस्फीयर में। ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ पोलर रीजन। जो हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो पोलर रीजन्स में रहते हैं, while the tropical rainforest possesses an exceedingly rich diversity of plants and animals। बल्कि जो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो एक एक्सटेंडेड रिच डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स के रहने की जगह के लिए। द न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम एयर। जो न्यूट्रिएंट्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए, वो एयर से आते हैं, वाटर से आते हैं एंड सॉइल से आते हैं, एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड, और कहीं बाहर से नहीं आते हैं। The same nutrients that are present in the biosphere are recycled over and over again for life to continue। जो हमारे सेम न्यूट्रिएंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी हैं, जो हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है, वो रिसाइकल होते रहते हैं, बार बार अगेन एंड अगेन रिसाइकल होते हैं, ताकि जो हमारी लाइफ है वो कंटिन्यू रह सके। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ विद इन द बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द सन। जो हमें एनर्जी चाहिए होती है लाइफ को, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो बायोस्फीयर के अंदर चाहिए होती है, वो सन से आती है। विदाउट विच द बायोस्फीयर विल कोलैप्स। अगर सन नहीं होगा तो उसके बिना जो हमारा बायोस्फीयर वो कोलैप्स जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। राइट। आगे नेक्स्ट 2 पैराग्राफ रीड करेंगे जी। खुशी जी, आप रीड करोगे? आपने रीड करना है खुशी जी? चलिए पलक जी रीड करेंगे, ठीक है। The tertiary part जी of the biosphere is divisible into enormous regions called biomes, which form vast ecosystems and are characterized by climate, vegetation, animal life, and general soil type. The dozen or more biomes of the Earth are spread over millions of square kilometers and span entire continents. No two biomes are alike. The climate determines the boundaries of a biome and abundance of plants and animals found in each one of them. The most important climatic factors that determine the boundaries of the biomes are temperature and precipitation, rain or snow. Aquatic systems are also divided into distinct aquatic life zones, which, however, are not called biomes but are very similar. The aquatic life zone are regions of relatively distinct plant and animal life. The major difference between the various aquatic zones is due to salinity levels of dissolved nutrients, water temperature, and depth of sunlight penetration. You will learn about the different types of terrestrial ecosystems, namely biomes and aquatic life zones on our Earth in Unit 3. जी, कंप्लीट हो गया। यस प्रियांशी जी। Yes sir. The terrestrial part of the biosphere is divisible into enormous regions called biomes। जो हमारी बायोस्फीयर का टेरेस्ट्रियल पार्ट है वो डिवाइड किया, इज डिविजिबल इनटू, वो डिविजिबल है इनटू इनॉर्मस रीजन्स,
और जो इनॉर्मस रीजन है उसको हम बायोम्स बोलते हैं, which form vast ecosystem and are characterized by climate, जो कि एक बहुत बड़ा वास्ट इकोसिस्टम है, बड़ा बहुत इकोसिस्टम है, और वो कैरेक्टराइज किया गया है बाय क्लाइमेट। उसमें क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, एनिमल लाइफ है, and जो जनरल हमारा सॉइल टाइप है वो भी है। The dozen or more biomes of the earth are spread over millions of square kilometers, जो डजन हमारे या ज्यादा उससे ज्यादा जो बायोम्स है वो हमारे अर्थ पे पूरा स्प्रेड हो चुके हैं ओवर मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स, वो मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स में स्प्रेड हो चुके हैं, मतलब फैल चुके हैं। एंड स्पैन एंटायर कॉन्टिनेंट्स, और जो उन्होंने पूरा कॉन्टिनेंट है उसको उन्होंने पूरा स्पैन कर दिया है, मतलब पूरा घेर लिया है। नो टू बायोम्स आर अलाइक, और एक भी बायोम्स एक दूसरे से एक जैसा नहीं है, मतलब सारे अलग अलग है। The climate determines the boundaries of a biome and abundance of plants and animals. जो हमारा क्लाइमेट है वो बायोम्स के लिए एक बाउंड्री क्रिएट करता है, abundance of plants and animals found in each one of them, और हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स में फाउंड करता है abundance बायोम्स की। The most important climatic factors that determine the boundaries, जो हमारा most important जो हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर है वो ये डिटरमाइन करता है द बाउंड्रीज ऑफ द बायोम्स और टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, और जो वो ये डिटरमाइन करता है जो हमारे बायोम्स की जो बाउंड्री हो वो टेम्परेचर की और प्रेसिपिटेशन की हो, मतलब रेन और स्नो की हो। Aquatic systems are also divided into distinct aquatic life zones, और जो हमारे aquatic systems है जो मतलब पानी से रिलेटेड जो हमारा सिस्टम है वो भी डिवाइड किया गया है aquatic life zones में, which however are not cold biomes but are very similar. उनको हम बायोम्स नहीं कह सकते हैं लेकिन उससे वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। The aquatic life zone are regions of relatively distinct plant and animal life. जो हमारा एक्वेटिक लाइफ जोन है वो हमारा किससे रिलेट करता है, जो हमारे डिस्टिंक्ट है ना प्लांट एंड एनिमल, उनकी जो लाइफ है उनके लिए वो रीजन है। डिस्टिंक्ट जो दूर दूर आई थिंक जो अलग अलग उसके होते स्पीशीज के। The major differences between the various aquatic zones is due to salinity. जो उनके बीच में अलग अलग जो aquatic zones के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज की वजह से, salinity की वजह से है। लेवल्स ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, और जो वहां पर न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं उसकी वजह से डिफरेंस है। वाटर का जो टेम्परेचर है उसकी वजह से डिफरेंस है। डेप्थ ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की मतलब जितनी अंदर तक सनलाइट जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है, उस जो डेप्थ है उसमें डिफरेंस है। You will learn about the different types of terrestrial ecosystem, namely biomes and aquatic. हम अलग अलग जो different types of terrestrial ecosystem है जिनका नाम biomes और aquatic है उसको हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन आंसर है अभी हमने इसको उसको भी कर लेंगे जो क्वेश्चन है। अभी हमने जैसे बताया यूनिट 1 के भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं और यूनिट 2 के भी हमारे कुछ मिड में जो कितने चैप्टर के मिड में जो क्वेश्चंस है और जो टर्म एंड चैप्टर एंड में जो क्वेश्चन है उनको भी हम कवर करेंगे। अब हम रीड करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसको रीड करने के लिए इकोनॉमिक्स कब करेंगे? हाँ, इकोनॉमिक्स का टाइम हो गया। लेट्स चलिए अभी हम क्लास को इसको एंड करते हैं। कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम से। ओके, थैंक यू एवरीवन।